Hello friends, now we are on the second chapter of mass communication and the chapter itself says mass communication. तो हमने पहले वीडियो में we tried to understand as to what is meant by communication. Communication का क्या मतलब है? तो हमने समझा था communication का मतलब है a message that is understood. अब हम आगे चलते हैं, आगे वर्ड ऐड हो गया है mass. And mass means not one person. Mass means a group of person. Mass means a large number of people. तो अब आपको मैसेज देना है, मैसेज डिलीवर करना है, but not to one, to many people across. Second thing, एक इंडिविजुअल, एक इंसान एक रेवोल्यूशन की शुरुआत तो कर सकता है. बड़े बड़े मूवमेंट्स हुए, बड़े बड़े रेवोल्यूशंस हुए, इंडियन नेशनल मूवमेंट हुआ, फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, शुरुआत एक इंसान से हुई. बट उसकी सक्सेस कभी भी एक इंसान उसको सक्सेस तक नहीं पहुंचा सकता. सक्सेस तक पहुंचने के लिए किसी मूवमेंट को, किसी रेवोल्यूशन को जरूरत है मास की, टू स्प्रेड across the large number of people. इसलिए Indian national movement is also called a mass movement. French revolution is called the mass revolution. मतलब बहुत सारे लोग एक इंसान के पीछे, या एक इंसान बहुत सारे लोगों को अपनी आइडियोलॉजी बता पाए, अपनी सोच बता पाए, and could bring a big change. सो बड़े बड़े चेंजेस, बड़े बड़े रेवोल्यूशन, बड़े बड़े मूवमेंट्स शुरुआत एक इंसान से होती है, इसमें कोई इनकार नहीं. बट वो सक्सेस तभी हो पाता है व्हेन देयर इज अ मास अराउंड. और होगा कैसे? व्हेन मास हैज टू बी कम्युनिकेटेड. उस मास को, ग्रुप ऑफ पीपल को आपको अवेयर करना पड़ेगा, आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, आपको उनको अपनी थॉट्स, अपने आइडियाज, अपने विचार समझाने पड़ेंगे. So here we come down to the mass communication that defines us, and definition says public communication transmitted either electronically or mechanically is known as mass communication. I am repeating, public communication transmitted either electronically or mechanically is known as mass communication. अब mass communication का मोटिव क्या है? मास कम्युनिकेशन आपको देना क्या चाहता है? तो मास कम्युनिकेशन टोटल 3 चीजों पे बिलीव करता है. वन इज इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट. इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट. तो मास कम्युनिकेशन, मास को कम्युनिकेट करके 3 चीजें दी जाती हैं, किसी भी अंदाज में, किसी भी तरीके से. 3 things are delivered. One is information, other is education, and third is entertainment. Now let's take up. So we all know there are many news channels, there are various TV shows, there are various movies, there are various reality shows that you see nowadays. So all these news channels provide you information, movies provide you entertainment, but many movies are having the real hidden मैसेज अक्रॉस. बहुत सारी मूवीज आपको कन्वे करना चाहती हैं एक मैसेज. अ पिंक मूवी केम, इट वाज विद द मैसेज. रिसेंटली यू सीन द मर्दानी मूवी, अगेन विद द मैसेज. सो मेनी मूवीज आर देयर व्हिच आर द सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट. Further, they supply you also a message. आज के टाइम पे, आज के दौर पे आप देखते हैं there are many short movies that you may see in your Facebooks across and may see in your mobiles. बहुत छोटी मूवीज आती हैं, बट बाद में उसके पीछे एक मैसेज कन्वे किया जाता है. So they work as a tool of entertainment and work as a tool of imparting education. There are many reality shows, but motive क्या है सबका? To provide information, to provide education, to provide entertainment, and to the public at large. And that too एक इंसान को नहीं, public at large. आगे चलते हैं. So mass communication, a very important part to the chapter. Mass communication is also known as channels of communication. Mass communication is also known as
channels to communication. It is defined as who says what, in which channel, to whom, with what effect. पहला आता है who, किसने बोला, who says what, क्या कहा, in which channel, किस चैनल में कहा, to whom, किसको कहा, with what effect. अल्टीमेटली उसके बोलने का कुछ इंपैक्ट हुआ या इंपैक्ट नहीं हुआ. सो मास कम्युनिकेशन कंप्राइज ऑफ दीज 5 थिंग्स. हु सेज व्हाट, इन व्हिच चैनल, किसको, टू whom, and with what effect. So this is overall the main contribution to the mass communication. अब हम बात करते हैं origin of mass communication. ये mass com डेवलप हुआ 20th century से. 20th century से मास कॉम अपनी फुल फेस पे स्प्रेड हुआ, फुल फेस पे डेवलप हुआ. aim was of mass communication was to send the message to the people in large number and with a greater speed. Aim was to send a message to the people in large number and with a greater speed. एक इंसान चेंज लाने की कोशिश कर सकता है, चेंज लाने का विचार रख सकता है, चेंज लाने की सोच रख सकता है, बट उसकी सोच चेंज ले आएगी, ला पाएगी. बट हो सकता है एक को चेंज आएगा, दो को चेंज करेगा, तीन को चेंज करेगा, बट तब तक वो चेंज ब्रॉड स्प्रेड नहीं लेगा, तब तक वो चेंज पूरा एक मास चेंज नहीं बनेगा, जब तक वो उसकी सोच मास में कम्युनिकेट नहीं होगी. सो दैट वाज अ मेन रेवोल्यूशन एंड द मेन एम बिहाइंड द मास कम्युनिकेशन. सबसे पहले ये मास कम्युनिकेशन का मीडियम बन के आया न्यूज़पेपर्स. Newspapers आए when printing press was invented in Germany. Newspapers बने, newspapers के बाद then came up telegraph. Telegraph आया, telegraph लाने वाले, the person who invented telegraph, Samuel Morse in 1835. Then sending the message in a human voice. Sending a message in a human voice was developed by Alexander Graham Bell. Alexander Graham Bell in 1876. Further, radio was developed by Marconi in 1901. Then transistors added to the revolution of radios in 1947. Further, TV was invented by Barrett in 1920. And further, you all know internet is in high expression, high spread out, high modulation. इंटरनेट आज के टाइम पे आपके पास अवेलेबल है. Now, what's the basic difference between mass communication and mass media? So what we discuss the news channel, we discuss the newspapers, we discuss the telegraph, we discuss the radios, we discuss transistors, we discuss TVs. These are all mass channels. ये सारे मास चैनल्स हैं, जिसके थ्रू हम मास तक पहुंच सकते हैं, जिसके थ्रू हम लार्ज लोगों को एड्रेस कर सकते हैं, हम लार्ज ग्रुप को एड्रेस कर सकते हैं. सो दिस इज अ बेसिक इंक्लाइन डिफरेंस बिटवीन मास कम्युनिकेशन एंड मास मीडिया. मास कम्युनिकेशन इज नॉट पॉसिबल in absence of mass media. And what the mass media is going to do when you don't want to communicate a particular message to a mass. So both things are very much interrelated and both things are very much complementary to each other. अब आगे हम बात करते हैं मास कम्युनिकेशन की रियलिटी में शुरुआत कहां से हुई. तो सबसे पहले प्रिंटिंग मशीन से हुई. Printing machine, Johannes Gutenberg in 1439 जर्मनी में हमारे पास प्रिंटिंग मशीन आई. प्रिंटिंग मशीन ने प्रिंट कल्चर डेवलप किया, एक प्रिंटिंग रेवोल्यूशन आया. प्रिंटिंग रेवोल्यूशन के बाद which started with block painting. ब्लॉक पेंटिंग के बाद फ्रेम प्रिंटिंग हुआ. पहले ब्लॉक प्रिंटिंग हुआ, ब्लॉक प्रिंटिंग के बाद फ्रेम प्रिंटिंग आया, और होते होते वी नो टुडे आज ऑफसेट प्रिंटिंग तक हम पहुंच चुके हैं. सो दिस वाज अ प्रिंटिंग रेवोल्यूशन. होते होते दिस प्रिंटिंग वाज बेसिकली इन्वेंटेड बाय द बुद्धिस्ट प्रीचर्स. बुद्धिस्ट प्रीचर्स ने इन पाली लैंग्वेज के अंदर इंक्लूड किया द प्रिंटिंग सिनेरियो. प्रिंटिंग मिशन आगे बढ़ा. होते होते प्रिंटिंग व्हेन वाज डेवलप्ड
प्रिंटिंग सस्ती हो गई, प्रिंटिंग सस्ती हो गई, प्रिंटिंग चीप हो गई. नाउ इवन अ एवरेज मैन कुड, ये एवरेज मैन तक पहुंच सकती थी बिकॉज नाउ प्रिंटिंग वॉज अ रेवोल्यूशन. एक रेवोल्यूशन बन चुका था. अब प्रिंटिंग सस्ती हो चुकी थी. इट वॉज विद इन द रीच ऑफ एवरेज पर्सन, जो पहले नहीं था. So, printing revolution started with newspapers. Newspapers, the first medium of mass communication. अब newspaper आया तो journalism आया. Journalism started in India during the British days and later by the social reformers like Raja Ram Mohan Roy, Bal Gangadhar Tilak, Gandhi ji further journalism को बढ़ावा दिया. गांधी जी ने स्टार्ट किया था इंडियन ओपिनियन, पहला जर्नलिज्म, पहला न्यूज़पेपर इन 1903 में इन साउथ अफ्रीका एंड लेटर ही स्टार्टेड इन इंडिया. हरिजन के नाम से इन्होंने जर्नलिज्म को आगे बढ़ाया. एक मास मैसेज को मास तक पहुंचाने की कोशिश थी. वक्त बदला, हम प्रिंटिंग से वायरलेस कम्युनिकेशन की तरफ आए विद द इन्वेंशन ऑफ टेलीग्राफ. टेलीग्राफ इन्वेंट हुआ बाय सैमुअल मॉसेस इन 1835 और लेटर फिर हमारे पास मॉसेस कोड सिस्टम आ गया 1951 में एंड टुडे वी हैव सेल फोन्स. कहानी आगे बढ़ी. वी केम डाउन टू फोटोग्राफी. सो इन फोटोग्राफी images were produced. Photography images were produced with the help of light. तो जो इमेज प्रोड्यूस होती थी, जो फोटोग्राफ प्रोड्यूस होती थी, उस टाइम पे उसको स्टिल फोटोग्राफी कहते थे. स्टिल फोटोग्राफी आगे डेवलप हुई इनटू मोशन पिक्चर्स. मोशन पिक्चर में कैसे डेवलप हुई? ये स्टिल पिक्चर्स को एक पर्दे पे उठा के एक मशीन डेवलप हुई जिसमें स्टिल पिक्चर्स डाली जाती थी एट अ ग्रेट स्पीड इन अ ग्रेट सीक्वेंस. ये एक मोशन पिक्चर बना के हमारे सामने रखती थी एंड मोशन पिक्चर इज नोन एज मूवीज. मोशन पिक्चर्स को ही मूवीज कहे जाने लगा. आगे ये मूवीज वर बिकॉज ऑफ इन्वेंशन ऑफ मोशन पिक्चर्स. फर्दर आगे कहानी बढ़ी. द फर्स्ट मोशन पिक्चर इन इंडिया was Raja Harishchandra. The first motion picture in India was Raja Harishchandra by Dada Saib Phalke and the first theater was Alam Ara. वक्त बढ़ा, हम फिल्म से रेडियोस पे आए. इन इंडिया रेडियोस 1920 में आए. इंडिया में रेडियो 1920 में आया. पहला रेडियो स्टेशन बॉम्बे में सेटअप हुआ. रेडियो के बाद वी कम डाउन टू टेलीविजन. टेलीविजन वाज इन्वेंटेड इन 1920 बाय बैरेट. बट इंडिया में आते आते 1920 का बना हुआ टीवी 1959 में इंडिया तक पहुंचा. पहला टीवी स्टेशन दिल्ली में सेटअप किया गया. कहानी आगे बढ़ी. कलर टीवीज 1982 में आए एंड टुडे दूरदर्शन इज द लार्जेस्ट टीवी नेटवर्क. अर्ली 1990 में हमारे पास सैटेलाइट टीवी आ चुके थे. व्हाट वी कॉल द DTH, डायरेक्ट टू होम सर्विसेज अवेलेबल हुई. नेक्स्ट केम्स अप. इसके अलावा टीवी तक तो पहुंच गए. फिर यू ऑल नो न्यू मीडिया. आज टीवी भी कौन देखता है? यू सी ऑल द न्यूज, ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स इन योर मोबाइल. तो मोबाइल आए, कंप्यूटर्स आए विद द फेज ऑफ इंटरनेट, विद द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस, विद द डेवलपमेंट ऑफ मोबाइल सेल फोन्स, विद द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेट. दिस इज अ न्यू मीडिया. कहानी बढ़ेंगी. जब ये सब कुछ नहीं था, when printing was not there, wireless was not there, photography was not there, तब भी क्या हमारे पास इंफॉर्मेशन देने का, एजुकेट करने का और एंटरटेन करने के कोई साधन थे? We will say yes, थे. They were known as traditional media. हमारे पास ट्रेडिशनल मीडिया चलता था. हमारे यहाँ नुक्कड़ नाटिका चलते थे, हमारे यहाँ स्ट्रीट थिएटर्स होते थे, हमारे यहाँ पपेट शोज चलते थे, हमारे यहाँ फ्लॉक
सॉन्ग्स होते थे, हमारे यहाँ फेयर्स लगते थे, हमारे यहाँ फेस्टिवल्स होते थे, हमारे यहाँ रिलीजियस प्रोग्राम्स होते थे, जिनके थ्रू हम लोग मास को कम्युनिकेट कर पाते थे, मास तक पहुंच पाते थे। उसके अलावा इंडिया वॉज ब्लेस्ड विद सम डांसर्स लाइक भरतनाट्यम, लाइक कथकली। ये कॉन्सेप्ट क्या था? These were those dancers जो पूरी की पूरी स्टोरी बयान कर देते हैं। पूरी की पूरी स्टोरी बयान होती है डांस फॉर्म में। तो डांस फॉर्म में बाय द मीन्स ऑफ द बॉडी लैंग्वेज पूरी स्टोरी, पूरी कथा सामने रख दी जाती है। So they were the mediums. They were the mediums of mass communication with the aim to inform, with the aim to educate, with the aim to entertain. So this was your chapter number 2 of mass communication. Thank you.